নমস্কাৰ, মই আপিয়াল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ এই ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 6ৰ হিন্দীৰ যিটো চেপ্টাৰ 6 আছে, অৰ্থাৎ পাৰ্ট 6 চাই असम की एक पहचान। এইটো আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি কৰিম। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা। প্ৰথমত আমাক দিছে পাৰ্ট 6 এক নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে পূৰ্ণ বাক্য মে জবাব দো, মানে সম্পূৰ্ণ বাক্যত আমাক উত্তৰ দিব কৈছে। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন যে চাय की खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। গতিকে চায়ৰ যি খেতি আছিলে প্ৰথমত ক'ত হৈছিল। চ' আমি উত্তৰ কৰিম যে চাय की खेती की शुरुआत सबसे पहले चीन देश में हुई थी। চীন দেশত প্ৰথমত চাহৰ খেতি কৰিছিলে, চাহপাতি মানে তাতে লগাইছিলে। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে सिंगापुर लोग चाय को किस नाम से जानते थे। আমি উত্তৰ কৰিম যে सिंगापुर लोग चाय को फिनाप अथवा फलप नाम से जानते थे। उसके बाद ग नंबर प्रश्न कि असम में चाय की खोज सबसे पहले किसने की। हम उत्तर करेंगे कि असम में चाय की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने की। घ नंबर प्रश्न যে असम के प्रथम चाय कृषक कौन थे। हम उत्तर करेंगे মানে প্রথম চাহ কোনে খেতি কৰিছিল আমাৰ অসমত। আমি উত্তৰ কৰিম যে असम में सबसे प्रथम चाय कृषक মণিৰাম দেৱান थे। মণিৰাম দেৱান প্ৰথমে অসমত চাহ উৎপাদন কৰিছিলে। তাৰপিছত আমাক খ নম্বৰ দিছে মিলাব দিছে ক অংশৰ লগত খ অংশ, যেনেকুৱা দিছে 2 নম্বৰ যে ৰেখা সঞ্চিত কৰ মিলাও। ক নম্বৰ দিছে উচল পৰ্ণা, এইফালে দিছে আৰম্ভ কৰ্ণা। গতিকে কোনটো লগত মিলিব এইটো লাগে। গতিকে উচল পৰ্ণা মানে কুট পৰ্ণা, গতিকে এইটো মিলিব ইয়াৰ লগত। চ' গতিকে তোমালোকে কিতাপত মিলাই ল'বা এনেদৰে, নহ'লে বহীত লিখি ল'বা এনেদৰে যে উচল পৰ্ণা মানে হৈছে কুট পৰ্ণা। তাৰপিছত শ্ৰীগোষ কৰ্ণা মানে আৰম্ভ কৰ্ণা। তাৰপিছত হাত বটানা মানে মদত কৰ্ণা, আৰু য খো জানা মানে হৈছে মগন হৈ জানা। ঠিক আছে, উত্তৰ এইখিনি। এতিয়া আমাক 3 নম্বৰ দিছে যে সংক্ষেপ মে উত্তৰ দো। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে हरी हरी चाय पत्तियों से चाय कैसे बनती है। हम उत्तर करेंगे कि हरी हरी चाय पत्तियों को पहले बगीचे से तोड़ा जाता है, उसके बाद पत्ते को सीटीसी मशीन पर दिया जाता है, जिससे चाय पत्ती तैयार होती है। ख नंबर प्रश्न कि लोग चाय क्यों पीते हैं। हम उत्तर करेंगे कि लोग चाय इसलिए पीते हैं ताकि शरीर एवं मन को ताजगी मिले। चाय का सेवन करने से आलसीपन खत्म हो जाता है। চাহ খালে আমি আলসি যি এলেহুৱা ফিল হয় এইটো আমাৰ নষ্ট হৈ যায়, ভাল হৈ যায়। ঠিক আছে, ব্ৰেইনটো যে পূৰা এক্টিভ হৈ যায়, চাহ এইকাৰণে খাব লাগে। চাহ আমি কিয় খাব লাগে সেইটো প্ৰশ্ন, এইটো উত্তৰ। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে पीने के लिए चाय कैसे तैयार की जाती है। গতিকে চাহ যি আমি খাওঁ চাহপাতি কেনেকৈ বনায়। আমি উত্তৰ কৰিম যে पीने के लिए पीने के लिए चाय मशीनों से तैयार की जाती है। তাৰপিছত ঘ নম্বৰ যে ভাৰতবৰ্ষ के किन किन राज्यों में चाय के बगीचे है। हम उत्तर करेंगे ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো ৰাজ্যত চাহ বাগিচা আছে, এইটো আমাক উত্তৰ কৰিব কৈছে। उत्तर दिन যে भारत के असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला आदि राज्यों में चाय के बगीचे है। গতিকে असम, पश्चिम बंगाल, बेंगल और तमिलनाडु, केरलात এইবিলাক কি আছে, চাহ বাগিচা আছে। এতিয়া আমাক দিছে যে पाठ के आसपास। 1 नंबर प्रश्न যে चाय बागीचे के लोगों में कौन कौन सी जातियाँ एवं जनजाति, उनकी भाषाएं क्या है, इस पर सामूहिक रूप से कक्षा में चर्चा करो। सो আমি উত্তৰ কৰিম যে কি চাহ বাগে মানে যিসকল ব্যক্তি বা পুৰুষ মহিলা চাহ বাগানত কাম কৰে তেওঁলোকৰ কি জাতিৰ আৰু তেওঁলোকে কি ভাষা কয় এইটো আমাক সুধিছে। আমি উত্তৰ কৰিম যে চায় বাগিচে মে টি ট্ৰাইব জাতীয় এবং জনজাতীয় হে। গতিকে চাহ বাগিচাত যিবিলাক আছে অসমত টি ট্ৰাইব বুলি কয়, এইবিলাক জাতি জনজাতি আছে। আৰু যিবিলাক ভাষা কয় লিখিম যে और उनकी भाषाएं है सदानी, संताली, मुंडा। আদিবাসীও কিছুমানে কয়, কিন্তু এইকেইটা দি দিবা। আদিবাসী দিলেও ভাল, নিদিলে একো কথা নাই। 2 নম্বৰ যে झूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाले कोई गीत है, उनमें 5 गीतों का संग्रह करके मिलकर गाओ। 5 गीत तो नहीं मिले हमें 1 गीत मिले, तो 1 गीत ही लिख देना। ये परीक्षा के लिए नहीं है, ये आपको जानने के लिए है। तो उत्तर करेंगे যে এটা গান যিবিলাক ঝুমুৰ নৃত্যৰ লগত গায় টি ট্ৰাইবৰ মানুহবিলাকে।
লিখিম উত্তৰ যে গানে কা নাম ঢোল বাজে মন্দৰ বাজে। এইটো তোমালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিবা, ঢোল বাজে মন্দৰ বাজে, আহিব গানটো। বহুত ধুনীয়া লাগে গানটো। যেনেকুৱা প্ৰথম লাইনটো এনেকুৱা, লানি কৈ আছোঁ, প্ৰথম গানৰ লাইনটো এনেকুৱা যে ঢোল বাজে মন্দিৰে বাজে, ঢোল বাজে মন্দিৰে বাজে, বাজে জোৰা নাগৰা দিদি গো, এনেকৈ গানটো কয়। ঠিক আছে, এইখিনি লিখিছোঁ আৰু লিখা নাই, তোমালোকে শুনিবা গানটো। এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে लंदन ओलंपिक के असम की चाय को मिलने वाले महत्व पर आपस में चर्चा करो। क्यों ओलंपिक में चाय का महत्व है? तो क्योंकि हमारा चाय किस में स्पेशल है? खुशबू में स्पेशल है। सो हम उत्तर करेंगे कि असम की चाय खुशबू में फेमस है। এইখিনি দি দিবা, তোমালোকৰ উত্তৰ হৈ যাব। বুজি পাইছা? এতিয়া দিছে योग्यता विस्तार। एकर क दिছে যে चाय असम की एक पहचान है विषय पर एक लेख प्रस्तुत करो। सो हम उत्तर करीम यार जो उत्तर असम में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने चाय की खोज की। 1839 ईंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार असम में चाय की खेती की शुरुआत की। उसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। असम का पहला चाय बगीचा है चाबुबा चाय बगीचा। उसके बाद ख नंबर प्रश्न दिया गया है कि असम से चाय का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा असम से और कोई चीज़ों का निर्यात किया जाता है। उनमें से किन्हीं 3 चीज़ों का नाम उल्लेख करते हुए उनके बारे में संक्षेप में लिखो। অসমৰ পৰা কি কৰোঁ, চাহপাতি আমি বাহিৰৰ দেশলৈ পঠাওঁ, বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈ পঠাওঁ। আৰু কি পঠাওঁ? চ' আমি উত্তৰ কৰিম যে কয়লা, পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰী এইবিলাক আমি অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ পঠাওঁ, एक्सपोर्ट करूँ तरमाने। गो नंबर जे झुमुर के अलावा चाय बगीचे में और क्या क्या त्यौहार मनाया जाता है बताओ। আমি উত্তৰ কৰিম যে ঝুমুৰৰ বাহিৰে আৰু কি নৃত্য উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰে। আমি उत्तर करेंगे झुमूर के अलावा चाय बगीचे में और विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे बिहू। बिहू भी सभी लोग मनाते हैं असम के। इतना 2 नंबर बिलक दिसे जे सोच कर लिखो। और नंबर दिसे जे अगर धूप न हो तो क्या होगा। हम उत्तर करें जे अगर धूप न होती चारों ओर अंधेरा होगा। यदि पोहर ना থাকে তেনেহলে চাৰিওদিশত কি হ'ব, আন্ধাৰা মানে আন্ধাৰ হ'ব। তেনেকুৱা যেতিয়া কি সূৰ্যৰ পোহৰ না থাকে, ৰাতিত সূৰ্যৰ পোহৰ না থাকে, এই কাৰণে কি আন্ধাৰ হয়। এতিয়া आ नंबर प्रश्न जे अगर हवा ना हो तो क्या होगा। हम उत्तर करेंगे अगर हवा ना हो तो सारे पेड़ पौधे जानवर और जीवन रूप नहीं होता। यदि गछ गछनि हावा ना থাকে তাহলে কোনো উশাহ ল'ব নোৱাৰিব, সবই জীৱ জন্তু জানোৱাৰ মানুহ গছ গছনি এইবিলাক না থাকিলে হয়। তাৰপিছত ই নম্বৰ যে अगर पानी ना हो तो क्या होगा। लिखिम पानी ना থাকিলে কি হলে হয়। আমি उत्तर কৰিম যে अगर पानी ना हो तो हमारी एनार्जी घट सकती है। देखिए पानी ना থাকিলে आमार एनार्जी घट सकती है और फलत आमी मृत्यु मुखत परिम। किमान ना आरो गाखिर खाई खाई जीयाई থাকিম, गाखिरो ना हबो यदि पानी ना থাকে। गरुबिलाक কৰ পৰা पानी खाब। তাৰপিছত ই নম্বৰ যে अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। गछ गछनि ना থাকিলে কি হ'ব। उत्तर কৰিম যে अगर पेड़ पौधे ना हो तो जीवित प्राणी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। गतिके ऑक्सीजन কি গছে আমাক অক্সিজেন দিয়ে। গতিকে আমি যে বাঁচি আছো, আমি বাঁচি না থাকিলে হয় গছ যদি না থাকে, कारण ऑक्सीजन पाऊँ आमी गछर পৰা। ऑक्सीजन नापालो হয় गछ ना থাকিলে। এতিয়া 3 নম্বৰ प्रश्न দিছে যে टिप्पणिया लिखो। टिप्पणिया लिखो মানে চমুটকা লিখিব কৈছে। ক নম্বৰ দিছে झुमुर नृत्यर ওপৰত যে झुमुर। उत्तर करें जो झुमुर असम के चाय बगीचों के लोगों के द्वारा एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के जरिए वे लोग विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से खुशियाँ मनाते हैं। ये नृत्य युवा लड़के और लड़के द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य है। उसके बाद बिहू के बारे में लिखेंगे कि बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। बिहू असम का जातीय उत्सव है। उसके बाद ग नंबर बगरुम्बा। उत्तर करेंगे कि बगरुम्बा बोडो जनजाति द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य है। ये उत्सव बिसागु के दौरान बिशोवा संस्कृति में मनाया जाता है। इतना 4 नंबर प्रश्न दिसे निम्नलिखित अवतरण के पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। ये आमक दिसे जे भारत सरकार द्वारा मोर की राष्ट्रीय पक्षी का मान्यता प्रदान किया जाना भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुकूल ही है।
रंग बिरंगे यह पक्षी हमारे राष्ट्रीय जीवन की विविधता के सर्वस्थ उपयुक्त भी है। इस पक्षी की देखभाल, पालन पोषण तथा इसकी नस्ल को कायम रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति इस पक्षी के प्रति निर्दय का व्यवहार करता दिखाई दे तो हर भारतीय का यह धर्म है कि वो जैसे ऐसे करने से रोके। राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते इस पक्षी को अधिक सम्मान एवं आदर प्रदान करना चाहिए और हर प्रकार से इसकी सुरक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। अब यह करोड़ों भारतीय आकांक्षाओं, भावनाओं एवं सचिंदाओं का प्रतीक बन गया है। इतना नेक्स्ट আমাক ক নম্বৰ দিছে যে প্ৰশ্নটো দিছে, আমি ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিছে, গতিকে প্ৰশ্নটো দিছে যে উপযুক্ত गद्यांश का एक उचित शीर्षक दो। सो আমি কি ময়ূৰৰ বিষয়ে লিখিছে, গতিকে আমি शीर्षक দিম যে गद्यांश से हमें हमारे राष्ट्रीय के कुछ जानकारी के बारे में समझाया गया है कि हमारे देश के पक्षी मोर है और ये करोड़ों भारतीयों का आशंकाओं का, भावनाओं एवं सचिदाओं का प्रतीक बन गया है। ठीक है। তাৰপিছত বা ইয়াত দিব পাৰোঁ যে আমাৰ তোমালোকে অকল এইখিনি লিখিব পাৰা যে हमारे देश का पक्षी मोर है, इमानखिनि शीर्षको দিব পাৰা যে हमारा देश के पक्षी मोर है। ठीक है, इमानखिनि शीर्षक দিব পাৰা তোমালোকে, মানে শিৰোনামটো। এতিয়া খ নম্বৰটো দিছে যে हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। আমি উত্তৰ কৰিম যে हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ग नंबर जे राष्ट्रीय पक्षी के प्रति भारतीय नागरिक का क्या कर्तव्य है। हम ग नंबर का उत्तर करेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी को देखभाल, पालन पोषण तथा उसकी नस्ल को कामयाब रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। घ नंबर जो हर भारतीय का क्या धर्म है। हम उत्तर करेंगे मोर की रक्षा करना। इतिया भाषा अध्ययन आमाक एक नंबर दिसे जे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। क नंबर दिसे जे जो खेत में काम करता है। हम लिखेंगे उत्तर के किसान। तार ख नंबर जे चार राहों का संगम स्थल। हम उत्तर करेंगे चौराहा। ग नंबर जे जिसे देखा ना जा सके। हम उत्तर करेंगे अदृश्य। घ नंबर दिसे जे जिसे पिया जा सके उसके पेय। ठीक है। তাৰপিছত যে आओ जाने এইবিলাক দিছে, তোমালোকে নিজে নিজে पढ़िबा যে जिस शब्द से किसी जातीय, व्यक्ति, संस्थान, वस्तु या गुण आदि के नाम का बोध होता है तो उसको क्या संज्ञा कहते हैं। सो ये आप रीडिंग पढ़ना, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी उदाहरण आपको दिया गया है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि का नंबर की व्यक्तिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि लोगों के नाम के बारे में बताया। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 2 नंबर कि तेजपुर प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, ऐसे ही हमको लास्ट में दिया गया है कि उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध कराता है। अंत यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तुम अपनी ओर से व्यक्तिवाचक संज्ञा के और उदाहरण लिखो। गति के परीक्षार कारण इम्पर्टेन्ट, गति के मैं दुटा दी दिसो जे हमारी भारत हमारी शान है। तो ये देख सकते दिल्ली हमारी राजधानी है। ये गलती हो गया, राजधानी दिल्ली हमारी राजधानी है, राजधानी लिखिएगा। स्किप करके देखेंगे, स्किप कर नाचाबा बुझी नापाबा। तार पाছত दिसे जातिवाचक संज्ञा। ইয়াত আমাক দিব কৈছে দুটা, গতিকে তোমালোকে এই দুটা ইউজ কৰিবা। जे उत्तर 1 जे शेर जंगल का राजा है। 2 नंबर जे हाथी के सबसे लंबे सुर होते हैं। तब ग नंबर दिसे जे भाववाचक। ইয়াত তোমালোকে লিখিবা যে उपरोक्त दिसे, गति के भाववाचक बोले भाव बसार माने केनेका भाव अंत में माने भाव होवार बस्तु। ठीक है, गति के जिकेटा दिसे এইকেটা पढ़िबा जे भाववाचक संज्ञा की जे चोरी करना पाप है, फूलों में खुशबू होती है। এইবিলাক जी তোমালোকৰ কিতাপত আছে এইবিলাকে পঢ়িবা। এইবিলাকৰ পৰা তোমালোকৰ प्रश्न আহিবা এনেকুৱা পৰীক্ষা যে भाववाचक संज्ञा दिया 3टा मान जे भाववाचक संज्ञा दीजिए 2, 3 व 1। सो इसमें से 2, 3 दिया गया है कि जैसे 3 नंबर तैरना अच्छा व्यायाम है, जिस इनमें से एक दे देना हो जाएगा। उसके बाद हमको दिया गया कि परियोजना। परियोजना में हमको एक प्रश्न दिया गया है, ये आप खुद करना होगा 1 नंबर को। उसके बाद 2 नंबर जो दिया गया है कि दो नंबर देखिए चाय बेचने के आधार पर निम्नलिखित यहाँ पे
गलत हो गया, तुम लोग अपना किताब देखिए कि चाय बेचने के आधार पर निम्नलिखित किसी असमिया फिल्मों के ध्यान रखकर दिए गए तथ्यों की जानकारी प्राप्त करो। गति फिल्म विषय लिखिब जेने प्रथम फिल्म का नाम लिखेंगे एरा बाटोर हुर। संगीतकार का नाम लता मंगेशकर। তাৰপিছত निर्देशक का नाम डॉक्टर भूपेन हाजरिका। कहानीकार का नाम डॉक्टर भूपेन हाजरिका। এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত তোমালোকৰ শব্দ অৰ্থ আছে যেনেকুৱা নিৰালা মানে হৈছে অলগ या जो दूसरे से ভিন্ন हो, এনেকুৱা বহুতো শব্দ অৰ্থ আছে। এইবিলাক পঢ়িবা, পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত আমি নেক্সট ভিডিঅ' তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নহ'লে স্ক্ৰীনত উঠিছে পাৰ্ট 7 হাৰ কি জিত, এইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম। তোমালোকে স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰি চাব পাৰা, নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথম লিংকটো আছে তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰা, নহ'লে কমেণ্ট বক্সত প্ৰথম কমেণ্টতে আছে। আজিলৈকে আহোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।